Evening friends, and here we come up with another session of 7 pages a day, and today we will be studying the further 7 pages. Okay, so कल हमने फंडामेंटल्स का स्टार्ट कर दिया था. सो फंडामेंटल में हमने एडवांस डायरेक्टिव देखा, देन हमने देखा व्हाट इज़ लिविंग वेल, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, देन टॉर्ट्स देखा, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, ठीक है, एंड नेग्लिजेंस क्या होता है वो देख लिया था, मैल प्रैक्टिस देख लिया था, देन लाइबल एंड स्लैंडर विच आर अ मेथड ऑफ डिफेमेशन. सो लाइबल क्या होता है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है, एंड स्लैंडर हमारा स्पीच के थ्रू होता है, ठीक है. So today we will be studying the next 7 pages. So let's start the point number 5th, and it says that assault is an unjustifiable attempt to injure or touch another person. It can be physical or verbal. ठीक है, तो assault क्या है? If you are trying to touch a person, if you are trying to injure a person, आप उसको harm कर रहे हैं, that is assault. ठीक है, so it can be verbal and physical both. Then battery is again सॉर्ट ऑफ असॉल्ट ओनली. सो बैटरी में क्या होता है, आप दूसरे पर्सन को इंटेंशनली टच कर रहे हैं, ठीक है, अनलॉफुली उसे टच कर रहे हैं, उसे थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है. सो बैटरी का एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ refusing to take the injection, then you are intentionally going, removing his clothes, touching him and then giving him injection. So this comes under battery. ठीक है. Then a durable power of attorney transfers all the rights that an individual normally has regarding his health care decisions to the designated agent. ठीक है, तो durable power of attorney में क्या होता है, जो कोई भी एक पर्सन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, एंड वो जो पर्सन होगा ही विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट. ठीक है, इफ़ द पेशेंट गोज इनटू कोमा, सो हम जो भी डिसीजन होगा वी विल बी आस्किंग फ्रॉम दैट डेजिग्नेटेड पर्सन. दिस इज ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी. Then point number 8 says confidentiality rules indicate that only those who are directly associated in caring for a patient can have access to a patient's information. So confidentiality का rule ये कहता है जो भी patient से directly involved हैं उसके treatment से, ठीक है, उसके caring से, only उन लोगों को ही access है patient के information से, and बाकियों को नहीं ऐसे information हम दे सकते हैं, ठीक है. देन फैक्सिंग या फिर ईमेल कर सकते हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन इफ़ द रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट. ठीक है, तो फैक्सिंग और ईमेल कर सकते हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन को इफ़ द पेशेंट गिव्स यू द कंसेंट. Then informed consent is not required in emergency situation. तो emergency situation में informed consent लेना is not necessary. Then doctor's orders to question are, ठीक है, there are some things that we as a nurse can question. So first is ambiguous orders. ठीक है, तो ambiguous order में क्या होता है, that is not very clear. ठीक है, जिसका आपको clear समझ नहीं आ रहा है what exactly the doctor wants to say. अगर कोई दो चीज़ें बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, that comes under ambiguous order. Then orders the client question. Then orders when the client condition has changed. Then orders which does not match with your experience or licensure requirement, and doctors must consign with verbal orders. So these are some things that the डॉक्टर्स को हम ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. दैन पॉइंट नंबर 12 सेज व्हेन यू ऑब्जर्व अ क्लाइंट्स बिहेवियर एज कल्चरली बेस्ड, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट्स इंटरेक्शन विद अदर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हेल्प अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिज बिहेवियर. ठीक है, सो अगर किसी भी क्लाइंट का बिहेवियर है दैट इज़ कल्चरली बेस्ड, ठीक है, तो उसके कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है उसका बिहेवियर, सो नर्स को असेस करना चाहिए अबाउट दिस thing, and she should interact with the family and friends so that हम patient का behavior को assess कर पाएँ, उसको meaningfully understand कर पाएँ, and also we can tell the patient about the things also. The legal aspect of nursing, तो इसमें आता है regulation of nursing practice, establishment and authorization of regulatory agencies, and then some points are there how you can protect your license. ठीक है, so you should not allow anyone to borrow it, copy नहीं करना है. So these are some things which are done in the foreign. ठीक है,
आपको उनको कॉपी नहीं करने देना है। अपना लाइसेंस अगर आपने लूज़ कर दिया है देन यू शुड इन्फॉर्म इमीडिएटली एंड डुप्लीकेट कॉपी को ऑब्टेन कर लेना चाहिए। बी श्योर दैट द बोर्ड ऑफ नर्सिंग इज़ नोटिफाइड इफ़ यू चेंज योर एड्रेस। प्रैक्टिस नर्सिंग अकॉर्डिंग टू द स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस इन योर स्टेट। नो योर स्टेट लॉज एंड सो दैट यू विल नॉट डू एनीथिंग विच कुड कॉज यू टू बी डिसिप्लिन बाय removal or revoking your license। ठीक है, these are the some points which are there that how can you protect your license। then reporting act, ठीक है, कुछ conditions ऐसी होती हैं which needs to be reported to the appropriate authorities। ठीक है, so ये कैसी कैसी conditions हैं, like gun, child and elderly abuse। if you suspect a child of being abused or elder being abused तो आपको उसके related appropriate जो authority है उसमें आपने उनको इन्फॉर्मेशन देना है। देन गन शॉट वुंड है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म। कम्युनिकेबल डिजीजेज है तो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम है तो, फिनाइलकेटोन्यूरिया है तो, एंड क्रिमिनल एक्ट्स हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट दोज एक्ट्स टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिक्वायरमेंट। सो जो कंसेंट है हु कैन गिव, ठीक है, तो अडल्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब ही शुड बी एबल टू मेक हिज ओन चॉइसेस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, देन वॉलंटरी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, विदाउट फोर्स, विदाउट एनी फ्रॉड, डिसीट या फिर किसी भी चीट के बिना आप उससे अगर कंसेंट ले रहे हैं दैन दैट इज़ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट का रिक्वायरमेंट। देन अ पेशेंट कैन नॉट साइन कंसेंट अगर ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग या फिर एल्कोहलिक है या प्री मेडिकेटेड है, देन ही इज़ नॉट ही कैन नॉट साइन द कंसेंट। ठीक है, एंड जो नर्स है, नर्स का रोल इन दिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ डॉक्टर कंसेंट लेगा एंड नर्स विल बी द विटनेस ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सो विटनेस होंगी एंड दिस इज़ दैट कि वॉलंटरली साइन हुआ है कंसेंट का फॉर्म। ठीक है, देन देयर आर सम गुड समैरिटन लॉज। तो समैरिटन लॉज में क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग योर ड्यूटीज़, ठीक है, आउट ऑफ योर कर्टसी, और आप वो चीज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आपको कोई रिवॉर्ड मिले या आपको पैसा मिले उसके लिए या आपको शाबाशी मिले या कुछ भी आपको मिले, बट यू आर डूइंग दोज थिंग्स फॉर गुड कॉज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ नर्सिंग प्रैक्टिशनर एंड यू सी समवन गेटिंग इंजर्ड इन द रोड, तो आप उसमें जब अपना जो आपका काम है यू विल बी डूइंग दैट। ठीक है, तो आप उसको, अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है यू विल बी गिविंग ए बेसिक फर्स्ट एड्स, और अगर आपको दिख रहा है कि CPR का ज़रूरत है यू विल बी गिविंग हिम CPR। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच कम अंडर दिस गुड समैरिटन लॉज। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन गुड फेथ, देन केयर मस्ट बी ग्रैटिट्यूअस, नो कंपनसेशन इज़ मेड फॉर द केयर रेंडर। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड के साथ करना है एंड आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेना है या कोई वो ये कंपनसेशन वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, देन हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर मे बी रिक्वायर्ड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर ड्यू टू हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। देन नर्स विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड केयर एट द लेवल ऑफ ऑर्डिनरी नर्सेज इन सिमिलर टू सर्कमस्टांसेस। देन हाँ, अगर कोई भी ऑर्डिनरी, जैसे आप रोड पे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ केयर, बट जितना जो लेवल का केयर है यू विल बी प्रोवाइडिंग हिम। ठीक है, then do not cover a patient who is soliciting for business or representing any agency। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पैसे ले रहा है या कुछ है उसको कवर अप नहीं करना है। you don't have to cover the care rendered in an emergency room situation। then care provided should be willfully and wantonly negligent। then liability, there are two types of liability। ठीक है, एक है individual liability and एक है vicarious liability। so individual liability क्या होगा, so everybody is liable to his or her action or conduct। ठीक है, तो every individual is responsible for his or her own reactions। ठीक है, जो उसके खुद के रिएक्शन थे उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइबिलिटी जो है इट मे बी शेयर्ड विद अनदर पर्सन और अ ग्रुप। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, देन द डॉक्टर्स एंड फेलो नर्सेज दे विल बी शेयरिंग द लाइबिलिटी। देन विकेरियस लाइबिलिटी में क्या होगा, अंडर द नर्स प्रैक्टिस एक्ट विच डिफाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ अ नर्स केयर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म
for example, wrongfully administering a medicine which would result in physical harm to a client. So these are some examples of individual liability and vicarious liability. Then criminal laws क्या होते हैं, wrong doings के लिए सोसाइटी में कुछ laws बने हुए हैं and it is sort of a punishment, ठीक है, तो जिसमें कि हम prison हो सकता है या फिर fine हो सकता है, ठीक है. criminal laws के examples हैं, if you violate the nursing practice act, murder, manslaughter, false imprisonment, narcotic violations, assault and battery, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज सिविल लॉज. तो सिविल लॉज होता क्या है, दीज आर सम ऑफ द रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और अ ग्रुप. कंपनसेशन इज़ यूजुअली फॉर द विक्टिम्स, ठीक है. तो सिविल लॉज में आप जो भी ये लॉज हैं दे आर अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग, ठीक है. एंड कंपनसेशन जो होता है इट इज़ यूजुअली फॉर द विक्टिम. एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉज में हमारा टॉर्ट, नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस इस सब के में आ जाएगा, ठीक है. तो सिविल लॉ हमारा टॉर्ट, नेग्लिजेंस एंड मैल प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है. देन एलिमेंट्स ऑफ मैल प्रैक्टिस सू are professional must owe a duty of established nurse patient relationship. Then a profession must breach the duty by doing something wrong. Harm must occur to the client. These are some points कि जब कि आप कब मैल प्रैक्टिस को बोल सकते हैं कि मैल प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है. सो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है. प्रोफेशनल ब्रीच होना चाहिए, गलती होनी चाहिए, हार्म होना चाहिए क्लाइंट को, डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रीचेस ऑफ ड्यूटीज़. देन दीज आर सम पॉइंट्स कि ये प्रेजेंट होने चाहिए, देन ओनली द मैल प्रैक्टिस में आगे जाके क्रिमिनल लॉ अप्लाई हो सकता है, ठीक है. देन फॉर्मेबिलिटी, अ प्रोफेशनल कुड reasonably accept injury to occur as a result of breach of duty. Then invasion of privacy is a violation of one's constitutional right to non-publicity and exposure to public view. Then nursing interventions या nursing implications जो इसमें होते हैं, so you should always intervene when the patient's client dignity or privacy is affected or violated, ठीक है. तो आपने कभी भी इफ़ यू आर सीइंग द अनदर फेलोज़ कि वो पेशेंट को प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, देन यू शुड इंटरवीन एंड देन यू शुड प्रोवाइड हिम प्राइवेसी, ठीक है. प्रॉपर वेज होने चाहिए टू कवर अ फिजिकल बॉडी ड्यूरिंग प्रोसीजर्स इफ़ नेसेसरी. मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए विच मस्ट बी रिलीज्ड ओनली विद रिटन क्लाइंट कंसेंट, ठीक है. देन रिलीज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स होना चाहिए विच शुड बी लिमिटेड टू द केयर गिवर्स एंड वो भी नीड टू नो बेसिस पे, ठीक है. देन क्लाइंट्स बिलोंगिंग मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड मे नॉट बी सर्च्ड विदाउट स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. हैव अ क्लाइंट्स इन्वेंट्री शीट्स वेयर ऑल द क्लाइंट्स बिलोंगिंग आर रिकॉर्डेड साइंड बाय द क्लाइंट. तो जो भी पेशेंट है इफ़ ही इज़ देयर इन द हॉस्पिटल उसके जो भी बिलोंगिंग्स हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड विदाउट एनी ऑथराइजेशन उनको सर्च नहीं कर सकता कोई भी. एंड एक इन्वेंट्री होनी चाहिए प्रॉपर जिसमें कि पेशेंट की सारे बिलोंगिंग्स नोट डाउन होनी चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय द क्लाइंट कि ही हैज़ सबमिटेड दीज थिंग्स टू द हॉस्पिटल. द नेक्स्ट इज़ डिफेमेशन. डिफेमेशन हमने कल भी पढ़ा था, इट इज़ रिटन होता है या फिर ओरल होता है एंड ये आपको डिफेम करता है, पेशेंट किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करता है. सो डिफेमेशन में हमारे 2 पॉइंट्स है, दैट इज़ स्लैंडर एंड लाइबल. तो लाइबल हमारा रिटर्न फॉर्म में है एंड स्लैंडर हमारा स्पीच फॉर्म में है, ठीक है. देन असॉल्ट. असॉल्ट अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को इफ़ यू आर डूइंग हार्म, ट्राइंग टू हार्म द पेशेंट, थ्रेट कर रहे हैं या उसको कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं बॉडीली विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट, ठीक है, और इट इज़ अ इंटेंशनल वाला टॉर्ट, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल थ्रेटनिंग टू गिव एन इंजेक्शन टू अ साइकोटिक पेशेंट इफ़ दे डू नॉट बिहेव प्रॉपरली, सो दिस कम्स अंडर असॉल्ट ओनली. देन नर्सिंग एक्शंस क्या होंगे, ट्राई टू कॉल योर क्लाइंट्स अटेंशन बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीजर. सो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले यू हैव टू कॉल फॉर द क्लाइंट्स अटेंशन, ठीक है, ताकि वो असॉल्ट जैसा ना लगे. सो द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड कि हम आपके पास ये प्रोसीजर करने वाले हैं. देन इट इज़ फाइन टू टच द पेशेंट एंड डू द प्रोसीजर्स टू द पेशेंट.
बैटरी ही एक सॉर्ट ऑफ असॉल्ट ही है। अभी हमने पढ़ा था कि बैटरी में क्या होता है, ये इसमें इंटेंशनली वी टच द पेशेंट, ठीक है, तो टचिंग वाला होगा जो बैटरी होगा, एंड असॉल्ट में वी डू द हार्म्स, ठीक है। देन एडमिशन जो होते हैं, एडमिशन भी टू टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एडमिशन इज़ द वन जिसमें पेशेंट खुद से आके विल कम टू द हॉस्पिटल एंड गेट एडमिटेड, ठीक है। एंड इनवॉलंटरी एडमिशन में क्या होगा, अनविलिंग होता है पेशेंट टू कम टू द हॉस्पिटल, लाइक फॉर द pediatric patients and also for the patient who are psychologically not so well, ठीक है। तो psychiatric patient and pediatric patient का जो admission है that is involuntary admission। देन डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है, इट इज़ द फाइनल और एब्सोल्यूट कंडीशन और इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फाइनल या एब्सोल्यूट कंडीशन होता है कि व्हेन यू हैव डन एवरीथिंग और पेशेंट इज़ क्योर्ड एंड देन ही इज़ फिट टू गेट डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे कि नर्सिंग होम से, ओटी से, पीटी से, रिहैबिलिटेशन से, कहीं से भी ही इज़ गेटिंग डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज हो गया। देन हमारा जो पेशेंट हाँ, तो फाइनल डिस्चार्ज तक पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द हॉस्पिटल, नॉट सो दैट अलग वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि जैसे पेशेंट को फिजिशियन के पास आना है फॉर द फॉलोअप चेकअप्स एवरी वीक या एवरी मंथ या फिर एवरी 15 डेज में, जैसा उसका वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, हम पेशेंट को अनलॉफुली रिस्ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। सो डिटेंशन या अनलॉफुली रिस्ट्रेन करना पेशेंट को इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, एंड इसमें हमारे रिस्ट्रेंट्स मेन आते हैं, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन रिस्ट्रेंट, फिजिकल रिस्ट्रेंट होता है, केमिकल रिस्ट्रेंट होता है। तो फिजिकल रिस्ट्रेंट में जो होता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें है ऑमनिबस बजट रिकंसाइलेशन एक्ट है, which provides patients and clients with the right to be free from physical and chemical restraint imposed for the purpose of discipline or convenience and not required to treat medical condition, ठीक है। सो जो ये एक्ट है वो पेशेंट को लिबर्टी देता है, वो पेशेंट को राइट देता है टू बी फ्री फ्रॉम सच फिजिकल एंड केमिकल रिस्ट्रेन, ठीक है। इफ़ दे आर डन टू मेक द पेशेंट डिसिप्लिन, या फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए, या फिर इफ़ द इट इज़ नॉट, ठीक है। तो ये हमारा जो पेशेंट को राइट देता है। देन अगर आपने रिस्ट्रेंट्स यूज़ करने हैं, देन यू शुड बी हैविंग रिटन कंसेंट फॉर दैट, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए रिस्ट्रेंट के लिए। If a client is unable to consent to use the restraint, अगर पेशेंट जो है वो कंसेंट नहीं दे पाता है रिस्ट्रेंट के लिए, देन उसका जो रिलेटिव है उससे कंसेंट लेना इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। एंड विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट अगर हम रिस्ट्रेंट ले रहे हैं, सो इट इज़ अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। Do not restrain the patient except ordered. If the patient is ordered to get restrained, तभी उसको restrain करना है, वरना नहीं restrain करना है, ठीक है। Then physician के order होने चाहिए for client and this, and in hospital हर 24 घंटे में, हर दूसरे दिन, जैसे अगर आपने आज restraint order दिए हैं, then doctor will give restraint order for next day also, तो डेली restraint order होना चाहिए, it is necessary। and restraint जो हम करते हैं पेशेंट को, we should go and check the site for any क्या बोलते हैं, अगर टाइट हो गया है तो occlusion वगैरह, या फिर एक्सट्रीमिटी को डैमेज ना हो रहा हो, तो we should go and check the restraint दिस लिम्स या फिर हैंड्स, जो भी हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं उसको हमेशा 10 to 15 या 15 to 30 मिनट्स में जाके पक्का से उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। देन रिस्ट्रेन तभी करना है व्हेन द पेशेंट इज़ हार्मफुल फॉर अपने आप के लिए या फिर फॉर अदर्स, अगर वो पेशेंट हार्मफुल है देन ओनली यू हैव टू डू रिस्ट्रेन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इमरजेंट कंडीशन, सो यू शुड हैव अ ऑर्डर फ्रॉम द एमडी टू रिस्ट्रेन एनी पेशेंट, ठीक है। इन एमरजेंसी सिचुएशन 103 पॉइंट भूल गए थे। सो इन एमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है, अगर रिस्ट्रेन आप लगा भी रहे हैं विदाउट द डॉक्टर्स परमिशन और विदाउट द डॉक्टर्स ऑर्डर, सो आपको रिस्ट्रेन के बाद इमीडिएटली ऑर्डर में डॉक्टर का एप्लीकेशन होना चाहिए, डॉक्टर का साइन होना चाहिए, ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन करना है अबाउट द चेक्स एंड न्यूरोमस्कुलर स्टेटस ऑफ द क्लाइंट्स एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि रिस्ट्रेन से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। देन द ड्यूरेशन ऑफ रिस्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द एजेंसी पॉलिसी। It is now common to have restraint order for psychiatric patient lasting for only 1 hour, ठीक है।
सो नेक्स्ट कमिंग टू केमिकल रीस्ट्रेन, तो केमिकल रीस्ट्रेन में क्या होता है, वी पेशेंट्स आर गिवन द साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है, जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डायग्नोस्टिक्स रिलेटेड कंडीशंस, ठीक है। तो अगर केमिकल रीस्ट्रेन ज़्यादा दे दिया तो व्हाट इट कैन कॉज, सो इससे डीप सेडेशन हो सकता है, एजिटेट हो सकता है पेशेंट, देन कॉम्बैटिवनेस एंड पॉसिबल इंजरी टू द पेशेंट भी हो सकती है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट नंबर 112, इट टेल्स अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, सिस्टमैटिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज असेसिंग, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमारा ये सब आता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो नर्सिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ केयर देते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 कंपोनेंट्स है वो हमें सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। सो encourage the client participation in care and decision making, nursing process is individualized care, ठीक है। तो नर्सिंग जो प्रोसेस है दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड केयर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट केयर होगी अकॉर्डिंग टू द देयर उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग केयर होती है, ठीक है। सो इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एंड पेशेंट को आपने इन्वॉल्व करना है इन केयर एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो देयर आर 5 फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड दैट इज़ ADPI, ठीक है। तो A से असेसमेंट, D से डायग्नोसिस, P से प्लानिंग, I से इम्प्लीमेंटेशन एंड E से इवेलुएशन। तो दीज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉर द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सो कभी भी हम जब भी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट एनक्लेक्स नोटिस में दिया हुआ है कि जब भी हम आंसर्स करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, वी मस्ट कीप दीज ADPI इन आवर माइंड एंड देन वी शुड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंगली, कि उसमें पूछा क्या है। असेसमेंट हो चुकी है, देन यू हैव टू डायग्नोस, एंड असेसमेंट डायग्नोसिस हो चुकी है, देन यू हैव टू प्लान कि क्या है, और प्लानिंग वगैरह सब हो गया एंड यू आर आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर्स कर सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। Then point number 124 says remember assessment option comes before planning or implementation. तो assessment हमेशा planning and implementation से पहले ही आता है, तो A comes first, ठीक है। असेसमेंट स्टार्ट्स एज सून एज द पेशेंट वॉक्स इन टू योर क्लिनिक, जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, आपके वार्ड में आता है, फर्स्ट आपका असेसमेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट में क्या होता है, यू हैव टू एस्टैब्लिश डाटाबेस ऑफ द पेशेंट, कलेक्ट करनी है उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल असेसमेंट डाटा, सब कुछ कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। देन कलेक्शन ऑफ फिजिकल असेसमेंट डाटा में जैसे ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फिजिकल डाटा आपको कलेक्ट करना है, उसका साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करना है। सो असेसमेंट में यू हैव टू असेस एवरीथिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। असेसमेंट में आप उसका ये हाइट, वेट, ये सब भी ले सकते हैं, दीज आर ऑल अंडर कम्स दिस असेसमेंट। एंड इफ़ अ पेशेंट इज़ क्रिटिकली इल, तो आप उसमें असेसमेंट क्या करेंगे, उसका बेड सोर है कि नहीं है, उसमें कोई और बीमारी है कि नहीं है, इफ़ ही इज़ एबल टू वॉक और नॉट, इफ़ ही इज़ limping or not. So these are all points come under the point of assessment. Then verification of your data, it is a one more important point where you have to clear if you have any doubts, ठीक है। For example, एक patient है, if he wants to urinate, then you can assess the symphysis pubis or distension or swelling. So ये आपका confirm कर देगा doubt about the urination, ठीक है। Then as a nurse, question the doctor's order and other healthcare workers or personal orders, ठीक है। For example, अगर कोई भी डॉक्टर है, if he is prescribing दिस डेमेरोल फॉर हेड इंजरी, ठीक है। तो डेमेरोल क्या करता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको डिप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो क्लाइंट का कंडीशन आपको चेक करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू चेक द लैब रिपोर्ट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चेक द पोटेशियम लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस डेमेरोल। ऑल्सो दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय वन सिंपल एग्जाम्पल, जैसे लिथियम है, ठीक है। तो लिथियम अगर आप किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं एंड देन आपका जो उसका लिथियम का आप लेवल्स चेक करते हैं, ठीक है, तो वो 12 to 24 आवर्स में आप ब्लड में चेक कर लेते हैं। देन इफ़ द लेवल शोज़ कि जो लेवल है वो हाई है काफ़ी इन द ब्लड, तो आपको अगर फिर से वो ड्रग देने के लिए डॉक्टर बोल रहा है, देन यू शुड आस्क द डॉक्टर फर्स्ट अबाउट द डोज एंड अबाउट द थिंग्स कि the lithium level is this much, so can we administer or we should decrease the dose or withhold the dose. So this is the responsibility of a nurse also, ठीक है। So this comes under the verification of data.
The next point is before you administer any pain medication you have to ask the patient to rate the pain. ठीक है, अगर पेन थोड़ा कम है तो पेन किलर अवॉइड ही करना है. You mainly have to give the diversional therapies. ठीक है, and if pain is more then तो आपको मेडिसिन देना ही पड़ेगा. ठीक है, then there are two types of data, subjective data and objective data. ठीक है, तो subjective data is what the patient is telling you. ठीक है, कि उसको पेन हो रहा है, तो this is subjective data. देन जो ये डाटा है उसमें मेनली क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्टम. फॉर एग्जांपल ही इज़ फीलिंग नॉजिएटेड, चिल्स है या पेन है. दीज आर ऑल द सिम्टम्स विच द पेशेंट फील्स एंड दिस इज़ द सब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा जो है दीज आर ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ओ फॉर ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जेक्टिव डाटा जो होगा इट विल बी कमिंग विद द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसा डाटा होगा वो होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपको दिख रहा है. इफ़ यू आर टेकिंग द टेम्परेचर तो वो इंक्रीज है तो येस, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा है. ब्लड प्रेशर, साइनोसिस, दीज ऑल अंडर कम्स द ऑब्जेक्टिव डाटा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में क्या होता है, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ डायग्नोसिस बाय यूजिंग द नंदा डायग्नोसिस. ठीक है, जो नंदा डायग्नोसिस है फॉर एग्जांपल की ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन है या फिर उस पेशेंट को ऑल्ट्रेशन इन कम्फर्ट है या पेन है, तो वो आपको डायग्नोसिस उसके हिसाब से बनाना है. ठीक है, देन एनालिसिस में क्या है, दिस इज़ टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, द कॉज एंड ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, एनालिसिस में आप आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, क्या कॉज है, क्या ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. ठीक है, देन यू हैव टू डू द डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द इमीडिएट नीड्स ऑफ द पेशेंट, determine the cause of the client symptoms. Then you have to determine the strength and weaknesses of the patient and use your laboratory values to analyze the data. ठीक है, तो different values होती हैं. So there are some values which are very important to learn. So इन values को तो आप एक बारी अच्छे से मतलब लिख के अपना points याद करके लिख लो. So one more tip I want to share is, तो आप सब जब भी पढ़ते हैं यू शुड हैव वन स्मॉल डायरी. ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, जब भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मेरे पास एक डायरी है, आई हैव मेड अ डायरी, जैसे मुझे ऐसे वैल्यूज़ याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. सो आई राइट दोज पॉइंट्स इन द डायरी एंड एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, मैं उसको एक बार पूरे दिन में ज़रूर एक बार पढ़ लेती हूँ पूरी डायरी. ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं वो मेरे को अच्छे से याद हैं, रिमेंबर हैं, और मतलब ऐसा होगा ना रटना जैसा, डेली मैं वो चीज़ देखती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, डेली बोलती हूँ, तो मेरे को वो अच्छे से याद हो चुकी हैं. तो दिस इज़ वन थिंग विच आई वांट टू शेयर कि ये आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज वैल्यूज़. ठीक है, तो वैल्यूज़ किसी को ऐसे अचानक से याद नहीं होती हैं, तो आप इसको डेली पढ़ोगे या डेली लिखोगे ना एक बार, तो आपको ये याद हो जाएंगी. सो फॉर एग्जांपल RBC का वैल्यू नॉर्मल जो होता है दैट इज़ 4.5 to 6 मिलियंस. ठीक है, WBC का हमारा 4,500 से 11,000 तक होता है. देन HB का नॉर्मल वैल्यू 12 to 18 है, 12 to 16 फॉर फीमेल एंड 14 to 18 फॉर मेल्स. ठीक है, HCT वैल्यूज इज़ 38 to 54. ठीक है, तो 38 HCT याद करने का सिंपल ट्रिक है, HB जो भी वैल्यू है नॉर्मल HB वैल्यू इंटू 3 कर दो. ठीक है, तो वो आपका HCT आ जाएगा. प्लेटलेट्स जो होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं. देन PTT इज़ हमारा 35 to 45 सेकेंड्स, PT इज़ हमारा 10 to 15 सेकेंड्स, APTT इज़ 25 to 35 सेकेंड्स. INR हमारा नॉर्मल वैसे लेस देन 1 होता है, बट इन केस द पेशेंट इज़ ऑन कोगुलेशन थेरेपी देन हमारा INR 2 to 3 जाता है. ब्लीडिंग टाइम इज़ 1 to 10 मिनट्स. देन सोडियम 135 से 145, पोटेशियम 3.5 से 5.1, मैग्नीशियम 1.3 से 2.1, कैल्शियम 8.5 से 10.5, BUN इज़ 10 to 20 वैसे 6 to 24 होता है. ठीक है, देन क्रियाट इज़ 0.5 से 1. क्रियाट, लिथियम एंड डिजॉक्सन ये तीनों सेम है. ठीक है, तो 0.5 से 1.5 क्रियाट भी है, लिथियम भी है एंड डिजॉक्सन भी है. देन कोलेस्ट्रॉल इज़ 160 to 190 mg/dl. सो जो हमारा ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम
लिथियम और डिजॉक्सिन का आता है। जो लिथियम में हम क्या देखते हैं, तो लिथियम में वी चेक द सोडियम लेवल्स एंड डिजॉक्सिन में हम चेक करते हैं पोटाशियम लेवल्स को, ठीक है। देन कमिंग टू द एंजाइम्स वाला पार्ट, CKP हमारा 25 to 175 होता है, AST 8 to 20, प्रोस्टैट एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन PSA 0.18 से 0.89 इन मेल्स मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ग्लूकोज 70 to 100 mg/dl, HbA1c इज 4 to 6%। देन कमिंग टू ABG एनालिसिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका एक नया क्वेश्चन फंस ही जाता है, ठीक है। तो pH नॉर्मल हमारा 7.35 से 7.45 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, ऑक्सीजन हमारा 80 to 100 होएगा, HCO3 विल बी 22 to 26, PaO2 इज़ 95 to 100%, pH 7.35 से कम तो एसिडिक, 7.45 से ज़्यादा तो बेसिक या एल्कलाइन, HCO3 इफ़ लेस देन 22 देन एसिड एंड इफ़ मोर देन 26 देन एल्कलाइन, एंड सेम विद CO2 इफ़ मोर देन 45 देन एसिडिक एंड लेस देन हमारा 35 देन बेसिक होगा, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आज का हमारा 7 पेजेस कंप्लीट हुआ एंड आई होप यू पीपल आर स्टडिंग दीज पॉइंट्स रेगुलरली एंड जैसे आप आज आपका 42 पेजेस हमारा आज कंप्लीट हो गया है, सो ट्राई टू रीड दीज 42 पेजेस अगेन वंस, एक बारी कल, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपका मेमोरी में ही अच्छे से रिकॉग्नाइज वो हो जाता है, रह जाता है और आप पेपर के टाइम पे इसको रीगेन करने के लिए ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।